Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vesla. Today we are going to do the drug picture Medoranum. Before going into the details, I want to share a news with you all that I have made a new Instagram account. ID is Bloomfuel 2025 and you can go and check out my new page where I'm posting everyday study tips, life quote, motivation quotes. So basically it's a page dedicated to the students who want to do excel in their things and who don't want to give up. So for the one who want the support we don't get from our surrounding and environments. So I just felt it that I should make something like this and I made it. And the reason behind creating this page is because, well, like I'm also wondering what I should do, what I should not do, and I'm also unfolding the life in my ways. And it is not always about academic, it is about life. So you have to deal with the things which you never thought you will deal, and you have to go through each and everything. It is happiness, sadness, discipline, hard work, and whatever it is. If you are chasing your dreams, then you have to go through each and everything, but at the end you should succeed, right? And it always come from failures. So जब तक आपने गलतियां नहीं करी है, you will never know what success tastes like. You really need to focus on yourself, really need to work hard, and trust me, I don't know about others, but when I just look back into my journey, I definitely say one thing, that it will definitely going to work out for you. So whoever you are, wherever you are, if you just want some motivation and study tips, if you also want to know the day-to-day routine, what I'm up to every day, so you can follow that page. And so without wasting our time, let us start Medoranum, the nosort. Medoranum, why I took so long time to understand and to make you understand about Medoranum, because I know request आए हुए 3 weeks हो गए 2 weeks हो गए. So reason is I don't want you to just understand the ailments only. ठीक है, एक personality type भी समझो Medoranum का, so that whenever you come across all these kind of people, it is easy for you to select the medicine. And definitely पता है हम ऐसी personalities के बीच में रहते हैं और आते भी हैं. So हमारा material medical इसीलिए interesting भी है, that we can connect with people. So let's start the topic. So I will start with the preparation first. Preparation कैसे किया गया? Obviously everyone knows that हमारा Medoranum, syphilis and Soranum, how it is all prepared. So Medoranum is prepared from the gonorrheal virus. Actually it is wrong word which is written here. It is bacteria. जो cause करते हैं gonorrhea का, it is Neisseria gonorrhoeae. ठीक है, सो ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है जिससे इसका प्रिपरेशन है. सो इट्स अ मिसनॉमर हम बोल सकते हैं. सो इट इज प्रिपेयर्ड थ्रू एटेन्यूएशन ऑफ गोनोरियल वायरस. ऑफ कोर्स जब हम नोसोर्स की बात करें तो आपको नोसोर का मतलब भी पता होगा. दैट मीन्स मेडिसिन विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो वैसे ही इसको प्रिपेयर किया गया है. तो इट इज टेकन फ्रॉम द डिस्चार्ज, गोनोरियल डिस्चार्ज, एंड इट इज ऑल ट्राइचुरेशन, सेकेशन, ये सब करके इसको प्रिपेयर किया गया है. सो थ्रू द एटेन्यूएशन. दिस इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग. लाइक सोराइनम हमारी क्या है? एंटीसोरिक है. सोराइनम इज एंटीसोरिक. एंड सिफिलिस की बात करें तो एंटीसिफिलिटिक होती है, एंड एंटीसाइकोटिक इज मेडोराइनम. अगर मैं नोसोर्स के बारे में इंपॉर्टेंटली बात करूँ, देन दीज आर द रेमेडीज, राइट. इट इज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर स्वेन, ये याद रखेंगे हम. ठीक है, देन पर्सनैलिटी टाइप. सबसे पहले मैंने यही बात की है कि आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एलेंस ओनली. एलेंस हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल. मेडोराइनम किस तरीके से प्रेजेंट करता है अपना आपको. टाइप. सो पर्सनैलिटी में फर्स्ट चीज जो आप इसका की नोट, जैसे मैंने सिफिलिस के लिए भी एक की नोट डाला है. अगर किसी रेमेडी को समझना है, उसका माइंड, पर्सनैलिटी समझना है, तो हमने एक की नोट से उसको समझना है. एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मेडोराइनम, द वर्ड इज पैशनेट एडवेंचरर. सो ये लोग बहुत एडवेंचरस टाइप होते हैं, लविंग टाइप होते हैं, एंड एडवेंचर हु लव द डेंजरस थिंग, वी कैन से एडवेंचरस, राइट. सो दे आर पैशनेट एडवेंचरर. पर्सनैलिटी टाइप में पहला वर्ड आएगा पैशनेट एडवेंचरर. Now we can think of this remedy for hereditary condition with history of suppressed gonorrhea. Obviously जब इसका preparation gonorrheal discharge से है तो any kind of history, ठीक है, अगर कोई भी patient किसी भी complaint के साथ आ रहा है with a positive history of suppressed gonorrhea, then you can think of Medoranum. Personality का जितना भी aggravation है, it start from the night till the dawn. ठीक है, रात से शुरू होकर सुबह तक होता है. But in case of Medoranum, it is सुबह से लेके शाम तक, राइट. इवनिंग आवर्स के बाद द पर्सन फील रियली गुड, लेकिन उससे पहले देयर इज एन एग्रेवेशन, राइट. सनराइज टू सनसेट, ये याद रखेंगे.
देन पर्सनैलिटी टाइप में अगर बात करूं मैं, शुरू करते विद द पॉइंट्स, तो दे कैन बी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और बीच में भी हो सकता है, बट दे कैन बी एक्सट्रीम इन एनीथिंग. सो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, काइंड टू क्रूअल, इंटेलेक्चुअल, डिटैच्ड टू बीइंग एक्सट्रीम इमोशनल. मतलब दे आर द पर्सनैलिटी जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट भी हो सकता है एंड एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं. देन काइंड हो सकते हैं, क्रूअल भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम क्रूअल भी हो सकते हैं, राइट. इंटेलेक्चुअली डिटैच्ड भी हो सकते हैं, लाइक दे डोंट केयर, दे जस्ट टॉक टू एवरीवन. ऐसे लोग होते हैं जो बात कर लेते हैं, सबसे कर लेते हैं, एंड दे आर इजी टू लव सोशलाइजिंग, राइट. तो वैसे वाली पर्सनैलिटी भी होती है. सो दे कैन बी इंटेलेक्चुअली डिटैच्ड, दे नो देयर लिमिटेशन, देयर बाउंड्रीज, एंड दे नो व्हेन टू स्टॉप, और किसको कितना टाइम देना, प्रायोरिटी देना, वो सब इनका पता होता है. बट दे कैन बी एक्सट्रीम इमोशनल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. और हमेशा एक चीज याद रखो, एक हमारा जो पर्सनैलिटी टाइप हम जिस भी ड्रग का पढ़ रहे हैं ना, तो उसका एक हेल्दी स्टेट है और एक बीमार वाला स्टेट है. हेल्दी स्टेट में आपको वो ये सारे सिम्टम्स नहीं देगा, डिल्यूजन हो रहा है उसको, ठीक है, या बहुत फियर है उसको. फियर कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको कुछ सर्टेन चीजों से फियर है, बट इट कैन नॉट बी अनहेल्दी वाला नहीं हो सकता. अनहेल्दी में जैसे ट्रिगर होती है एंग्जाइटी, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. फियर बहुत ज्यादा, अब नॉर्मली फियर होना किसी चीज का, ये सब चीजें जब आती हैं, देन डेफिनेटली इट हैपेंस इन देयर सिकनेस टाइम, ठीक है. सो एक पर्सनैलिटी हैप्पी टाइप है हमारा, मतलब हैप्पी इन द नॉर्मल हेल्दी कंडीशन. बेडोराइनम किस तरह का पर्सनैलिटी है, एंड सिक, व्हेन दे गेट सिक और डिजीज्ड, तब वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक पर्सनैलिटी हमारी वो भी आती है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग. Next है enormous appetite for life. This is very important. These are the people who are very hungry for life. Hungry, enormous appetite मैं बोल रही हूँ, hungry, they are very hungry in many ways. अब आप बताओ, जैसे कि ये गोनोरिया है, वो भी क्यों आया? Because you are having fun around, right? So वो suppressed gonorrheal discharge की उससे preparation होती है, ठीक है. So they are hunger for everything, not only physical, ठीक है, physically they are mentally also hungry, they want to learn, they want to know everything, right. And then spiritual, in every way they are. इसीलिए ना ये पर्सनालिटी जो है ऑलराउंडर बोली जाती है, इसलिए ऑलराउंडर बोलते हैं मेडोराइनम को, बिकॉज दे नो मैनी थिंग. उनका आर्टिस्टिक साइड भी होती है, ठीक है, मेंटली भी दे आर वेरी क्लेवर. आई विल टेल यू लेटर, ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दे हैव इनॉर्मस एपेटाइट फॉर लाइफ. जिंदगी जीने की बहुत चाह है इन लोगों में, and they want to learn, they can learn from anyone, they are very optimistic, they can learn from anyone, from a stranger, from a child, from old age to anyone. उनका इतना ईगो नहीं होता है, ठीक है, जैसे लाइकोपोडियम है, ओहो मेरा सीनियर है तो चलो यस ओके ओके, और अगर मेरा जूनियर है तो अबे चल साइड हो, ये वाला चीज नहीं है इनमें. दे वांट टू लर्न फ्रॉम एनीवन, राइट. ओके, देन टेंट फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ फॉरबियस, वैसे बता दिया है ना कि एनॉर्मस एपेटाइट है, इसीलिए एक टेंट, या तो आपके फोरबियर्स फोरफादर्स में ये हिस्ट्री मिल सकती है, तब भी आप ये मेडिसिन सोच सकते हैं, ठीक है. मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हंगर, हंग्री फॉर मोर ऑफ एवरीथिंग. डेवलपमेंट जब जल्दी होता है, बिफोर द एज हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. सो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के लिए दिया जाता है सेक्चुअली प्रिकॉशियस स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि गोनोरिया का होने का रीजन भी यही है ना, जो हम, इट्स अ काइंड ऑफ एसटीडी, राइट. सो इसका भी रीजन यही है हमारा. सो इंक्यूजिटिव क्या होता है? द वन हु वांट टू लर्न, द वन हु वांट टू नो, ठीक है, बार बार उसको सब चीज का आंसर चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रंस आर वेरी इंक्यूजिटिव. इफ दे डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, दे विल आस्क यू अगेन, एंड इफ यू टेल समथिंग, राइट, दे विल बिहेव लाइक अ मैच्योर मैन. आप एक बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने दो बातें उसको बोल दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, लाइफ में ऐसा होता है, राइट. अगर आपने ये सब चीजें बोल दी हैं, तो बस मेडोराइनम चाइल्ड कैसा होगा, वो एक कैच कर लेगा, और फिर जब कभी आप कुछ बोल रहे होंगे, देन ही विल गिव इट यू बैक. आप सोचोगे सच में द पर्सन इज, द चाइल्ड इज सो मैच्योर, ये चीज है. इस तरह का वो प्रेजेंटेशन देता है मैच्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, राइट. देन दे हैव क्लेवर जस्टिफिकेशन फॉर देयर डिसोबीडियंस. अगर उन्होंने आपका कोई बात नहीं मानी है और रूल्स ब्रेक कर रहे हैं कुछ भी, बट दे विल सो क्लेवरली प्रेजेंटेड कि आप डिनाई नहीं कर पाओगे, आप उनको पनिश ही नहीं कर पाओगे. इस काइंड का मेच्योरिटी, इस तरह का मेच्योरिटी की बात हुई है, राइट.
देन दे हैव रेपुटेशन फॉर क्रुएल्टी बट मॉडरेट नॉट टू एक्सट्रीम लाइक सिफिलिस। मैंने बोला वैसे ये एक्सट्रीम हो सकते हैं, बट याद रखो जब भी हम कोई पर्सनैलिटी पढ़ते हैं ना, उसके बहुत सारे साइड्स होते हैं, एक साइड नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ों में कुछ तो हम जेनेटिक हेरिडिटरी होती हैं चीज़ें, बट कुछ हमारा ना नेचर भी होता है टूवर्ड द एनवायरनमेंट, जो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो हम सामने वाले से चीज़ें लर्न कर रहे हैं। बट कुछ टेंट होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जो क्रूअल साइड है, ठीक है, जो साइकोपैथ्स होते हैं, वो आप देते नहीं हो, आप सिखाते नहीं हो, बट दे आर हैविंग दैट टेंट इन साइड दैम, दे आर हैविंग दैट टेंट इन साइड दैम। तो उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट डू समथिंग बेटर, बट दिस काइंड ऑफ केसेस आर नॉट ईजी टू हैंडल, राइट। सो दे हैव क्रुएलिटी। क्रुएलिटी कैसे है इनका? मॉडरेट है, एक्सट्रीम लाइक सिफिलिस जैसा नहीं है। सिफिलिस का क्यों? अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है सिफिलिस का, जहाँ मैंने पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करा, तो वहाँ सिफिलिस में अगर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो बच्चा क्या करता है, मार मार के पेट डॉग जो भी है सबको क्या करेगा, या तो अपने कॉकरोच हो गया जैसे, तो ड्रॉर्स में रख देगा अपने, ठीक है, एंड देन ही विल टेक अ लुक, और वो उसके लिए अम्यूजमेंट है, वो उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है, वहां पे उसको फ्लेक्स करने का मन होता है कि ओ मैं इससे भी ज्यादा सुपीरियर है। वैसा वाला सिफिलिस है जहाँ इमोशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेडोराइनम कैसा होता है, तंग करने वाला होता है, पकड़ा है हाथ से और उसको टेल से पूरा घुमाना शुरू कर दिया, इस तरह का जो बिहेवियर है मेडोराइनम चाइल्ड दिखा सकता है। और वन कैन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल लाइक इफ द चाइल्ड एंड मदर इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, तो मदर का अगर स्लिप हो गया, गिर गए हैं, पहला रिएक्शन बच्चे का भी क्या हो, बच्चे का नॉर्मली होता है कि ठीक है जस्ट आप उठो या कुछ नहीं तो आप एक रिएक्शन देंगे, बट दिस पर्सन विल लाफ ऑन हिज और हर मदर, मतलब यू वॉन्ट एक्सपेक्ट दैट रिएक्शन, वैसा वाली चीज होती है। ऑब्वियसली हमारा फ्रेंड गिर जाएगा हम तो हंसेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड वी आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज इंजूरियस टू हर और नॉट, राइट। तो वहां पे वो फन टाइप हो जाता है, बट फॉर अ चाइल्ड दिस इज समथिंग जो आप नॉर्मली रिएक्शन नहीं सोचते हैं, ठीक है। सो बस इतना ही है इनका, एंड दे आर लाइक दिस इन टीनेज, ऐसे ये टीनेज के टाइम पे रहते हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी याद रखेंगे, वाई दे आर डूइंग दिस, बिकॉज दे वांट टू फ्लेक्स हिज मसल टू गेन अ सेंस ऑफ पावर। दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आई एम बेटर देन यू, यू माइट बी द एल्डर पर्सन, ठीक है, यू माइट बी द एक्सपीरियंस, बट मैं भी हूँ, ऐसे वाली चीज इनको होती है, ठीक है। इसीलिए मेडोराइनम चाइल्ड मतलब ड्यूरिंग द टीनेज और एडोलसेंट के टाइम पे दे आर सो रेकलेस, किसी का नहीं सुनेंगे, जो करना है वो करना है इनको, ठीक है, बट सरप्राइजिंगली मेच्योर, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब इनको जिम्मेदारी समझ में आ गई है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अरे ये तो ऐसा था एंड सडनली ही बिकेम सो फैमिली टाइप एंड एवरीथिंग, बट दिस इज द फेज हाउ मेडोराइनम चाइल्ड ग्रो, ऐसा ही है। Now we are going to talk of woman, तो woman of world बोल सकते हैं, learn from great diverse experience, passionate and adventurous, सब चीजें हैं इसमें, पैशनेट है, दे आर एडवेंचर, दे कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, बच्चा है बूढ़ा है कोई मैटर नहीं करता है, सीनियर है जूनियर है कोई मैटर नहीं करता है, दे कैन लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और एनीवेयर, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये लाइफ को बहुत ही दोनों तरीके से देख सकता है, एंड दैट इज बाय एक मेडोराइनम का अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर गुड मीडिएटर। मैंने एक चीज बताई थी कि इतना डिटैच, अपने आप को थोड़ा डिटैच रखते हैं, इतना ज्यादा अटैच नहीं होते लोगों से, सो दिस इज द रीजन, क्योंकि वो एक ही साइड नहीं देख रहा है, वो दोनों साइड देख रहा है, एंड दैट इज वाई दे आर गुड मीडिएटर, ठीक है। देन मैन आर फियरलेस, फीमेल आर एंशियस। इसमें जो मेडोराइनम मैन है दे आर फियरलेस, उनको किसी चीज से ऐसे कुछ डर नहीं है, फीमेल्स का इधर है, ठीक है, एंड स्पेशली मैंने बोला एक हेल्दी कंडीशन होगा एक डिजीज कंडीशन होगा, तो यू कैन से जहाँ पे थोड़ा सा उनको एनवायरनमेंट सही नहीं मिला या कोई रीजन रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आया उसके बाद से ये सब चीजें हो सकती हैं। सो फीमेल आर एंशियस, इरेशनल थिंकर्स, अनरिलेटेड टू डेंजर, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, वो तो आपका एलेंस में भी लिखा है, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी और क्लेयरवॉयंस, मोस्टली जो चीजें सोचते हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट भी हो जाती है, ठीक है, और बहुत डर भी है। एक हरिडनेस इनमें बहुत प्रोमिनेंट है, हरिडनेस इन द सेंस, हरिडनेस आई मीन टाइम की वजह से नहीं है, दे आर हरिड इन देयर एक्शंस, तो इसीलिए इनको क्या लगता है टाइम इज गेटिंग स्लो बिकॉज दे आर हरिड, दे आर हैविंग दैट हरी इनसाइड देम, राइट, तो ये भी याद रखेंगे। और ये किस तरह का पर्सनैलिटी है, देखो, स्विच एट सनसेट फ्रॉम रैशनल ऑब्जेक्टिव मोड टू स्पॉन्टेनियस लिरिकल एंड रोमांटिक, ये क्या करेगा, 9 to 5 आपको कैसे दिखेगा, अरे कॉर्पोरेट जैसा प्रॉपर बंदा होता है ना, अपना काम कर रहा है जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबल,
जैसे ही 5 बजे एनर्जी दूसरा शुरू हो गया इसका। नाउ द पर्सन इज सो लाइवली, ये मार्केट जाएगा, ये रेस्टोरेंट जाएगा, ये कुछ भी करेगा, मतलब ही वांट टू लिव हिज लाइफ। तो उसका लाइफ शुरू होता है इवनिंग आवर्स में, ठीक है, एंड दैट ही बिकेम स्पॉन्टेनियस, लिरिकल एंड रोमांटिक, राइट। सो 9 to 5 जॉब करता है एंड स्विच ऑफ इन इवनिंग, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ। although it is impossible, मतलब ऐसा होता नहीं है, we in our youth try to explore many things but everyone knows work place का load is too much, होता ही होता है, और उसके वरीज you cannot be like कि आप घर आके स्विच ऑफ कर देंगे। if it was a bad day definitely you will think about it, ठीक है, आपका मन नहीं होगा, आप बाहर नहीं जाओगे, बहुत सारे तरीके। बट मेडोराइनम कैसा है, 9 to 5 हो गया ना, नव गॉन, वो मोड ऑफ है उसका, नव अनदर लाइफ शुरू हुई है उसकी, ठीक है। तो इसको जिंदगी जीनी आती है, वैसे हम बोल सकते हैं, राइट। वीकनेस क्या है इसका, टेंडेंसी टू स्पेस आउट। हाँ, ये इसका वीकनेस है। अगर कोई टॉपिक इसका इंटरेस्ट का नहीं है, ठीक है, या कुछ चल रहा है दिमाग में, तो द पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू स्पेस आउट, फिर वो कुछ नहीं होता, उसको कुछ याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहती हैं चीज़ें। एंड एक और चीज़ है, ये जो पर्सन है ही इज सो इंटेलिजेंट वी कैन से, इंटेलिजेंट इतना होता है कि इसको सब याद रहेगा, लाइक कल एग्जाम है तो ही विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट आप इसको ये पूछ लीजिए कि वाइवा हो रहा है, आपने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, ही इज आंसरिंग एवरीथिंग रियली वेल, बट रिसेंट मेमोरी, जो सुबह उसने ब्रेकफास्ट खाया है उसके लिए भूल जाएगा, वो आपको आंसर में भी ना कर पाए, ऐसा वाला पर्सनैलिटी, राइट। और मे भी अपना नाम भी भूल जाए, इस तरह का इसमें फॉरगेटफुलनेस होती है। So these are the things I want to discuss about Medorayanam as a personality, and I'm gonna post Medorayanam in 2 parts because I think it's going to be a long video. So अभी personality type के बारे में बताया मैंने आपको, and I will post about the symptom in the next video so that it will be interesting for you to learn also, and it don't get stretched too much, right? So वो interest बना रहना चाहिए, इसलिए I will make it in another part. I hope you understand Medorayanam now. And let us meet in the next video, and where we are going to understand the symptoms also. Till then, take care of yourself and we'll meet in the next one.